Good morning, everyone. Good morning, sir. I'm Good audible. morning, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Okay. Now, beta, actually, I'll tell you one thing. I am teaching you from Delhi. Uh, Here I have come to see my father. He was stuck during lockdown and he was with my younger brother and he was not keeping well. So I have come to just meet him and I'll show him to some doctor also. So I will not take very long class. A short class I will take. And in my previous class, Sanidhya, you were there. No, sir. Dashet, you were. Actually, No, in sir, my I wasn't area, there. Raghav was in my there, I area, the think. COVID-19 test was going on, so I had to go there as well. Why? So, all okay? Yes, sir. So neighbor was positive. Okay, no problem. Now see here, Raghav was in my class and I think Kratika and Lavish was also in my class. So I have taught search. So for you, I will take search program again. And I have already written that program saved. So not much time will be wasted. And then today I will also teach you modify program. Remember, in your book, you will not find modify program through your this one classes and object. But I will teach you that will help you for your future as well as it will help you in your this one to make projects also. So we'll come to the point here. For that, first recording is started. Just now recording is there. So we'll start with the search program. For that, I will first share the screen. I'm sharing a screen for you. Okay. One more thing, you know, the problem is going on with the SendPos website, but we have managed to just display the password today, ID password, you know, so that you can attend the classes. This ID password of all the classes are displayed here, 11, 12, with the subject wise. As you open the site, you will get it. Because the hacker is attacking on the database. So we are also taking some measures to just work accordingly. Magar is smart enough, I know. Okay, who is hacking our website? We are finding out his location and of course we'll take some action. Father is planning to put an FIR also. So the person who is doing, once he is caught, he will be in great trouble. Anyways, so we'll start with the class. I'll start the Python here. So the timetable isn't written, so it will be the same as last week, right? Yeah, yeah. Other classes you are not attending? No, sir, but like the timetable wasn't there in the video on the YouTube channel, so I thought maybe it has changed because the individual class rooms were also made. Same class, same. You have come to the same time. We are starting new file. Okay. So file open. What name I have given? Raghav. Video off kar lo now. Raghav, you just give me the name of the file. Do you remember? EMP, I think I have given. EMP project. ऐसा कुछ नाम दिया था? Yes, क्या sir. नाम? Project का दिया था. हाँ? का दिया था project. EMP project. Yes, sir. Yes, sir. Second file. Second number की जो फाइल है EMP Project 1. ऐसा नाम था या कुछ और नाम था? सिर्फ EMP था. EMP 1 project 1. Okay, I will. Date से आप. Okay, I will take this also only. Okay. So we have made a class. You know that actually, you know, Delhi population is there. So all the noise you will get it. It's main road house and I'm teaching in hall. So voice you will get the different people are selling the things. Anyways, welcome to the create option is clear to you. And in my previous class, I have also taught about append.
Append means to add mount record. Put off video, Raghav. Video is on. Okay. So we are starting with EMP employee CF open emp.dat. Yes. So what is the difference between a create and a append? W and A. That's it. W stands to write and A. Now both program will work in same way, but in create we write from the beginning of the file so that the previously written records are deleted, whereas in append we write records at the end of the file so that 1 2 3 records are there, then 4 5 6 7 records will be saved after that. It will not overwrite the previous records. Got it? Sanidhya, show hands, thumbs up if you have understood. Okay, so the point is clear to you. Create and append is clear to you. Same way both are working. Now come to the list. List, though you are aware of it. How to this work list display all the items. We put while true. Why will put while true? Because while works on the true condition and the false condition for the file is when record is not found. So as the record is not found, that is end of file and the file is closed. Got it? This try and except we are using for exception or error handling statements. तो जैसे error means जैसे end of file होगी, it will not give an abrupt termination, rather it will close the file. Got it? Yes, sir. Okay. Now we are going for the search program. In search program, what we are doing, we like you have to see your result. When you have to see your result, what do? You don't see everyone's result, or board even not permits, or even you want to see the ticket information of which you have booked, so you enter PNR number. So only your information, because पूरे India के result या पूरे India के tickets नहीं आ जाते. Only your, for that you have to search a particular record from the file. So what we do here, we write here emp.eno equals to seno. emp.eno equals to search employee number, and then we write emp.out. emp.out. Rest everything is same. Only you have to enter SENO, search employee number. That has to be entered, and then that has to be compared with the employee number coming from the file. So one record is read here through load, equal.load, record is read and stored in the object EMP. Now this emp.eno equals to SENO will compare these two, and then it will display emp.out. No other record will be displayed. आप अगर चाहो तो record not found वगैरह भी कर सकते हैं, but else में मत करना, नहीं तो हर बार मान लो कि 5th टाइम आपका रिकॉर्ड हो रहा है तो 4th टाइम ये कर देगा record not found. उसके लिए लॉजिक एक बना लेते हैं, record not found करना है तो ये मैं एक्सटेंशन कर रहा हूँ. Suppose I am taking x variable x is equals to 0. And then what I am doing here, as the record is found, x is equals to x plus 1. Why to unnecessary continue the loop? I am breaking it. Okay. And after all, everything is over, I will write if x is still 0. A logic बना दिया. I will write here print record not found, result not found, ticket not found, whatever you want to write. I will run and show you the program. Enter your choice. First, we'll see the display part. Displaying only one record. Okay. So what I will do, I will write some more record. I don't know the choice. एक और काम करते हैं बेटा, ये मेन मेनू है, इसको थोड़ा और अच्छा करते हैं. जस्ट सी, ये मुझे दिक्कत आती है, मुझे याद नहीं रहता कौन सा ऑप्शन में, तो प्लीज ये मेन मेनू को थोड़ा और अच्छा करिए. ये मेन है. Here I am writing print, and then I am writing main menu. And what I am doing here, backslash n, not show.
ट्रिपल कोट्स में दे देते हैं। ट्रिपल कोट्स में मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं वैसे एक्सलेशन की भी 1 create आप और अच्छा बना लेना 2 list 3 search 4th append okay 5th modify 6th search 6th delete so here I am running this program. So when I will run, I'll come to know exactly what I'm doing. This entire choice should come down. एक और काम करते हैं थोड़े से प्रोग्रामिंग लॉजिक्स और चेंज करें C by default can be 0 so run this program. Clear हुआ main menu 1 create list 3 search 4 modify delete okay so now मेरे पास list खुली हुई है so what I will do I'll press to list ये मेन मेनू ऊपर आ रहा है लिस्ट के बाद फिर आना चाहिए तो वो देख लेंगे एंटर योर चॉइस फिर मेन मेनू आ गया लिस्ट आ गया सर्च थोड़ा सा मेन मेनू को ठीक करना ठीक है अब इसमें मुझे सर्च करना है सर्च नंबर 3 अब कौन कौन से रिकॉर्ड ये मेन मेनू मुझे सही जगह पे लेके जाना है नंबर 1 2 नंबर 3 रिकॉर्ड नॉट फाउंड थर्ड नंबर का रिकॉर्ड नहीं है सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है दैट इज रजा तो अब मैं फिर से चॉइस नंबर 2 करूंगा सही हो गया ना रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ गया थर्ड सर्च अगेन एंटर एम्प्लॉय नंबर 2 रिकॉर्ड इज अगर ये बहुत सारे रिकॉर्ड भी होते तो भी हो जाते अपेंड के लिए अपने पास ऑप्शन है 4 सपोज मैंने एंटर एम्प्लॉय नंबर 11 कर दिया नेम कुछ भी दे दिया डेजिग्नेशन कुछ भी दे दिया सैलरी कुछ भी दे दी और नो कर दिया एंटर चॉइस नंबर 2 किया आप देखिए दोनों रिकॉर्ड डिस्प्ले हुए पर चॉइस नंबर 3 किया तो मेरे पास अगर मैं 1 करूंगा तो सिर्फ 1 की इंफॉर्मेशन that is the utility of the search program so is it clear or not please Yes, write sir. down the program or take the screenshot of it थोड़ा सा मैं इसको सही करूंगा एक्चुअली मेरे पास कॉल आ रहा है मुझे निकलना है मैं 5 मिनट से 7 मिनट और क्लास लेना चाहता हूँ आप एक डेफिनेशन लिखो all of you please write seek file obj.seek file obj.seek file obj.seek file object.seek जो भी फाइल है जैसे m फाइल r फाइल whatever okay and then one is your file obj.tell okay so write definition the file obj.seek takes you or puts the file object
to a particular record, या ऐसे लिख दो to the location of particular record. Tell deal नहीं है, sorry, tell. Whereas tell function returns the position of the record. ब्रैकेट में कर देना करंट स्लैश लेके करंट रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड जहां उसको मिलेगा उसकी पोजीशन रिकॉर्ड करेगा. एक अज्यूम करो पहला रिकॉर्ड स्टार्ट होता है 0 बाइट से, ये हमेशा होगा 0 बाइट से. तो पोजीशन पहले 0 मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड हुआ. मान लीजिए उस रिकॉर्ड में मेरे 50 बाइट्स आए. आपको पता होना चाहिए बाइट पे कन्वर्ट होगा आपका ऑब्जेक्ट. तो इंटीजर का कुछ साइज होगा, आप जो कैरेक्टर एंटर करेंगे 10 कैरेक्टर, सपोज इंटीजर इन्हें 8 लिया और कैरेक्टर ने 10 लिया, तो टोटल साइज 18 हो गया एग्जाम्पल. तो 0 to 17 एक रिकॉर्ड हो गया, 18 to नेक्स्ट दूसरा रिकॉर्ड हुआ. अगर 18 पे फाइल ऑब्जेक्ट है तो सेकेंड रिकॉर्ड रीड होगा, 0 पे है तो फर्स्ट रिकॉर्ड. इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात मुझे बताओ. सीक फाइल ऑब्जेक्ट के ऊपर फाइल ऑब्जेक्ट को प्लेस करता है, एंड टेल उस जगह की पोजीशन बताता है, रिटर्न करता है. दोनों में ये फर्क है. हमें अगर उस रिकॉर्ड को चेंज करना है तो टेल के थ्रू चेंज होगा. अगर हमें किसी रिकॉर्ड की पोजीशन पता करनी है सिर्फ, तो उसके लिए टेल होगा. एक होता है कि बता देना और एक होता है उस जगह पे जाके चेंज करना. तो जगह पे जाके चेंज करने के लिए सीक होगा, पोजीशन बताने के लिए टेल होगा. क्लियर हो रहा है? प्लीज शो थम्स अप. Yes, sir. ओके. तो सर अपन अमाउंट ऑफ बाइट यूज से अपन उसकी लोकेशन एक्सेस करते हैं, मतलब जैसे हाँ, आपने हाँ. बोला कि पहले. जैसे कि मैंने कहा इंटीजर 8 बाइट्स लेता है और आपने 10 कैरेक्टर्स. देखो पाइथन में एक प्रॉब्लम है कि पाइथन डायनेमिक नेचर में होता है, स्टैटिक साइज नहीं होता है. तो इसलिए हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि कितने का रिकॉर्ड साइज होगा, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी नहीं प्रॉब्लम. जबकि C++ जावा में वेरिएबल के साइज डिफाइन हो जाते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता होता है किस साइज का ऑब्जेक्ट बनेगा. इसमें साइज का चक्कर पड़ता है, इसलिए प्रॉब्लम आती है. ठीक है, आएगी, आपके साथ भी आएगी, मगर मैं कोशिश करूंगा कि रन करें. ठीक है, सो विल स्टार्ट नाउ प्रोग्रामिंग पार्ट. डेफिनेशन पार्ट अगर क्लियर हो तो हम आगे बढ़ते हैं. तो एक ही प्रोग्राम, लास्ट प्रोग्राम हम लेंगे, डेल वाला बाद में समझाऊंगा. आप बस उतना ही काम क्या करिए तो मैं कह रहा हूँ, प्रोग्राम तो मेरे पास पूरे बने. तो मॉडिफाई वाला प्रोग्राम लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. डेफ मॉडिफाई यहाँ से यहाँ. If you are writing okay, if you are taking a screenshot, बाद में ये वीडियो भी अवेलेबल रहेगा, उस समय भी आप देख सकते हैं. तो ओपन द फाइल, देन एंटर emp number to modify, then position, try, while true, emp.load. यहाँ तक तो होपफुली नो प्रॉब्लम. अब इस पॉइंट ऑनवर्ड लोड होने के बाद किस रिकॉर्ड को पर्टिकुलरली आपको डिस्प्ले करा चेंज करना है, तो मैंने उसको आउट कर दिया. पोजीशन इनिशियली 0 लिया है. अगर पहला रिकॉर्ड है तो वो 0 से स्टार्ट होगा, तो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट पहले रिकॉर्ड पे प्लेस हो जाएगा. वंस द रिकॉर्ड इज प्लेस्ड, हम एक नया रिकॉर्ड emp ऑब्जेक्ट के थ्रू डालेंगे और उसी को डंप कर देंगे. तो सेम पोजीशन पे सपोज 2 रजा लिखा है तो 1 रजा हो जाएगा. आप समझ रहे हैं? और उसकी सैलरी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, मैं करके दिखाऊंगा. मान लीजिए कि अब आपको सेकंड रिकॉर्ड, जिसका रिकॉर्ड नंबर 11 है, उसको आपको रिकॉर्ड नंबर 2 करना है. तो उसके लिए पोजीशन क्या होगा कि पहला रिकॉर्ड नहीं मिलेगा. जब पहला रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो एल्स पे जाएगा. समझ में आया? एक और बात का ध्यान रखिए, प्लीज नोट डाउन, व्हेन यू रीड अ रिकॉर्ड, वंस अ रिकॉर्ड इज रेड. आप एक मुझे बात बताओ, मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ. आपने 1 पेज की रीडिंग की तो आप कहां पर पहुंच गए? एनी ऑफ यू प्लीज गिव रिप्लाई क्विकली. End of page या फिर next page. एंड ऑफ पेज और नेक्स्ट रिकॉर्ड पे. सिंपल सी बात, एंड ऑफ पेज और सेकंड पेज पे. एक्चुअली जब ये लोड हुआ था, भले से रिकॉर्ड मैच हुआ या नहीं हुआ, आप पहुंचे कहाँ?
सेकेंड रिकॉर्ड पे, तो सेकेंड रिकॉर्ड की पोजीशन पीओएस में स्टोर हो गई। प्लीज समझ जाओ इसे। rf.tel ने क्या किया, सेकेंड रिकॉर्ड की पोजीशन दे दी। अब यहाँ पर जो लोड होगा, सेकेंड वाला रिकॉर्ड लोड होगा, चेक होगा, मतलब पोजीशन किसकी पता चलेगी, ये सेकेंड तो लोड होगा, मगर एक्चुअली ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा, फाइल ऑब्जेक्ट थर्ड रिकॉर्ड पे। मगर बिकॉज ऑफ दिस पीओएस ये फिर से सेकेंड रिकॉर्ड की बिगिनिंग में रहेगा। आप समझो इस बात को, समझ में आई या नहीं? Yes, sir. सानिध्या को सिर्फ समझ में, बाकी लगता है शशि को नहीं है। हाँ सर, एक बार मतलब जैसे हाँ, अपन ने जब फिर से लाइक समझो। फर्स्ट रिकॉर्ड कर लिया तो मतलब अपन सेकंड पे आ गए, तो मतलब वो हर बार नेक्स्ट वाले रिकॉर्ड की पोजीशन के बताएगा ऐसा? फाइल ऑब्जेक्ट नेक्स्ट रिकॉर्ड पे रहेगा, बट बिकॉज ऑफ दिस एल्स पार्ट वो सेकंड ही दिखाएगा, सेकंड के ही पे ही प्लेस करेगा। आप समझो इस बात को। हाँ 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 हाँ, अब समझ आ गई सर। यस सर। एक्चुअली यहाँ पर जो ईएमपी है में आया है रिकॉर्ड, वो सेकंड आया है, तो चेक तो हम सेकंड रिकॉर्ड को करेंगे और डिस्प्ले भी सेकंड रिकॉर्ड को करेंगे। मगर फाइल ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया है, अगर हम यहाँ पे rf.seek और यहाँ से पोजीशन लेते तो वो थर्ड रिकॉर्ड मॉडिफाई हो जाता, सेकंड नहीं होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए इस टेल ने पहले ही बता दिया था कि पहला रिकॉर्ड जब रीड होगी एल्स नहीं मिला तो वो सेकंड रिकॉर्ड की पोजीशन है। गॉट इट? यस सर। Ashit, बस you are saying only. Lavish. Yes, sir. Okay, ठीक है। So I will run now and show it to you. वो अब मेन्यू ठीक करना था, मैं भूल गया, कोई बात नहीं, बस मैं लास्ट करा रहा हूँ, मैं बंद करूंगा। वैसे भी मैंने पूरा ही बता दिया, मैंने सोचा था शॉर्ट क्लास लेंगे, बस मुझे निकलना है अब आपको मैंने रन मॉड्यूल स्लैश नंबर 2 पहले देख लो ध्यान से। ये एट पोजीशन है हमारी, सेकंड रिकॉर्ड एम्प्लॉय नंबर 2 आ रहा है। अब मैं इसको मॉडिफाई करूंगा, वो अभी मेन्यू को मुझे ठीक करना पड़ेगा, वो कर दूंगा मैं अगली क्लास। एंटर योर चॉइस, मॉडिफाई के लिए 5th चॉइस है। एंटर एम्प्लॉय नंबर टू मॉडिफाई 2, एक्चुअली 2 है मगर है रिकॉर्ड नंबर 1। एंटर एम्प्लॉय नंबर, ये मॉडिफाई अब हो रहा है, मतलब अभी एंटर हो रहा है रैम में, ठीक है। बेसिक पहले कितनी दी थी, 5000। कुछ एरर आया है, एक बार और रन करते हैं। ये एरर आ जाती है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं, हो जाएगी। रन फिर से करते हैं, रन मॉड्यूल। एक बार लिस्ट देखते हैं क्या कुछ एरर आ गई तो गड़बड़ कर रहा है। इसको अभी एरर हैंडलिंग से रोका जा सकता है, मेहनत करनी पड़ती है, हो जाता है सब कुछ। 1 क्रिएट 1 एंटर एम्प्लॉय नंबर 1 कर दिया है, रुक जाओ, फिर से चॉइस नंबर 1 कर रहे हैं। एक्चुअली मेनू सही करते हैं यार, अब तो मेनू याद हो गया ना, फिलहाल में कहो तो हटा दो इसको, मेनू तंग कर रहा है मुझे। ये हो क्या रहा है कि मैंने शुरू में इसको डिस्प्ले करा दिया है और ये यहाँ डिस्प्ले हुआ, फिर इसने इनपुट योर चॉइस पूछा, इनपुट योर चॉइस से पहले क्या हुआ है, ऊपर भी मेनू आ गया है क्या, ऊपर ये मेनू डिस्प्ले हुआ, ये डिस्प्ले क्रिएट हुआ, फिर एंटर योर चॉइस हुआ, ठीक तो है, इसमें दिक्कत क्या है, मेनू तो ठीक है, ये टेक्स्ट प्ले हुआ, अगर C1 है 2 है तो ये दिखाएगा, ये एरर है, आप समझ लो। कंट्रोल यहीं पे चॉइस डिस्प्ले हो गया, फिर रन होना चाहिए। सही है। 1 एम्प्लॉय नंबर 1 10 है,
डेजिग्नेशन सपोज मैंने TGT दे दिया, सैलरी 100 रुपए दे, यस। एम्प्लॉय नंबर 2, ठीक है। अब मैंने स्पेलिंग स्मॉल में लिख दी है, इनको भी मैंने TGT कर दिया। इनकी सैलरी मैंने 500 दी थी, मुझे 5000। नो, अब मैंने मॉडिफाई किया, सर अर्नल्ड को ही ले लेते हैं। एंटर चॉइस नंबर 5, एंटर एम्प्लॉय नंबर 2 मॉडिफाई। सो मैंने 2 किया, तो अर्नल्ड सर का डिस्प्ले हो गया। मैंने एम्प्लॉय नंबर 2 ही रखा, 3 भी कर सकते हैं। मैंने अर्नल्ड का पूरा कैप्शन अर्नल्ड, डेजिग्नेशन PGT कर दी। सैलरी इनकी कितनी है? 500 रुपये, 700 रुपये कर दी, ठीक है। अब मैं डिस्प्ले कराऊंगा। अब देखो अर्नल्ड सर चेंज हुए या नहीं हुए? हो गए, PGT हो गए, 700 हो गई, उससे DHRA का टोटल ग्रॉस सब निकल गया। क्लियर है? ओके, Yes, sir. in the next class. Till then, goodbye. Have a nice day.